Today we are going to solve few numericals based on capacitors. We have just studied the formula of capacitors. In case of formula, Q is equal to CV, where C the capacitance, V the potential difference and charge Q that is related by Q is equal to CV. For a parallel plate, capacitor is epsilon naught A by D. For medium it is K epsilon naught A by D. For series combination 1 upon S, 1 upon S1 plus 1 upon S2 plus 1 upon Sn. For parallel combination C1 plus C2 plus Cn. For energy stored, that is half CV square, half Q square by C or half QV. These are the fundamental formulae on which we are trying to solve few numericals. This is the formula for series combination. This is the formula for parallel combination. We know what is series combination, in which charge remains constant, path is single. Parallel combination when the path is divided, and in that case potential difference remains constant. चलिए कुछ numericals ले रहे हैं. पहला numerical हम यहाँ से start कर रहे हैं. First numerical is this one. This numerical. Point A, point B. Find equivalent capacitance of the following networks. Assume that each capacitor is of 1 microfarad. So how many capacitors we have? Let's make numbering C1, C2, C3 and C4. ये नेटवर्क है AB के क्रॉस. हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है. हमें पहले कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा. Which type of combination it is, whether series, parallel or mixed combination. Let's try to understand. अब बेसिक प्रिंसिपल आना चाहिए. When we talk about the combination, in case of series combination, the path should be single. In case of parallel combination, the path should be divided. Okay, let's come to this point. When we start from point BA and reaches to this point, and from this point to this point, we have two paths, one along C2, another along C3. So C2 and C3 both are in parallel combination. If you replace this C3 from here, then again C2 and C3 will be in parallel combination. In this path, from this point to this point, you will connect anywhere this capacitor C3, then it will be considered in parallel combination. Don't think so. This line is parallel to this line, only these two are in parallel combination. If this C3 is shifted to this point, then again it is parallel. If C3 is shifted on this line, then again it will be the parallel combination. And first step is C2 and C3 are in parallel combination. And we know the formula of parallel combination, that is Cp is equal to C2 plus, and not Cp, this time we'll write C23. C23 means combination of C2 and C3, that is 1 plus 1 is equal to 2 microfarad. And again the diagram will change. According to this, it is C23, C1 and C4. This is A and B. Now which kind of combination it is? Either C1 is parallel to C2, C4 or not. No, it is not parallel. We'll start from point A, we'll move and we'll reach point B. All three capacitors are along a single path. That's why C1, C23 and C4 all are in series. So next step is C1, C23 and C4 are in series combination. And if it is series combination, then 1 upon C1, 2, 3, 4. What is C1, 2, 3, 4? Combination of C1, C23 and C4. That will become 1 upon C1, 1 upon C23. How much? That is 2, and that is 1 upon 1. It is 2 plus 1 by 2 is equal to 5 by 2, or C1, 2, 3, 4 is equal to 2 by 5 microfarad. This is the answer. This is the answer. So this is a way to find the equivalent capacitance. The simplest question we started with. Now let's try to increase one more capacitor in this line and one capacitor on this side, and we have to find again the equivalent capacitance. Now it becomes C3, it becomes C4 and it becomes C5, and let us say this is the capacitor C6. Now how will we just find its solution? Again,
from this point to this point, if we imagine, suppose this point is A dash and this point is B dash, so there are two paths to reach from A dash to B dash, one via C3, C4 and C5, another through C2. So this C2 is in parallel with C3, C4 and C5, and this path, this and this, the three capacitors are in सीरीज कॉम्बिनेशन। हम यहाँ एक कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये मैथमेटिक्स वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये गलत कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन की हमें पहचान करनी है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पाथ सिंगल होगा, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है देन पाथ विल बी डिवाइडेड। सो यहाँ हमें क्या करना होगा, यहां से A डैश से B डैश तक जाने का ये वाला पाथ आप कंसीडर करेंगे, एंड इन दिस पाथ C3, C4 and C5 all are along the single path. That's why in which combination? Series combination. So the first step will change, and according to this first step, C3, C4 and C5 are in which combination? Series combination. And what the formula of series combination? 1 upon C3, 4, 5. What do you mean by C3, 4, 5? 345 नहीं है, the combination of C3, C4 and C5. It's very easy for us to understand. हमें समझ आता जाएगा कि किस किस को हमने सॉल्व कर लिया है. That is 1 by C3, 1 by C4, 1 by C5, 1 by 1, 1 by 1, and it will become 3 by 1, or C345 is equal to 1 by 3 microfarad. And in next step we'll change the diagram now. It will be, this is C1, C2 and this is C6, and now it is, this one is C3, 4, 5, this is A and this one is B. This is the combination. And again it just resembles with the solution of the previous questions, because now these two will become in parallel, and if these two are in parallel then remaining will become in, and then all will become in series. So in next step C2 and C345 are in parallel combination. In parallel combination, so C2345 is equal to C2 plus C345. अब पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे पता लगा? The path is divided, and now it will become 1 plus 1 by 3, that is 4 by 3 microfarad. And now you will draw another diagram. This one is C1 and this one, it becomes C2, 3, 4, 5, and this one is C6, this point is A and this point is B, and now all these three capacitors are in series. So CAB will become 1 upon C1, 1 upon 2, 3, 4, 5 plus 1 upon C6, and 1 upon 1 plus it will become 3 by 4, and now it will become 1 by 1, 2 plus 3 by 4, 11 by 4, or CAB is equal to 4 by 11 microfarad. That will be the answer. ये आंसर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वही क्वेश्चन में हमने दो कैपेसिटर और ऐड किए, अब बस इतना स्टेप में चेंज आएगा, these three will become in series combination. Again we want to make this confusion clear that this C3 is not parallel to C5 and this C2 is not parallel to C4. Here we are not going to discuss the parallel lines or parallel combination as we have discussed in mathematics. Here parallel, again I want to make you clear, parallel means path divided and series means path single. Okay. Come to next part. इसी में एक थोड़ा सा और हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करें, एक कैपेसिटर हम इसमें और लगाएंगे, and in this capacitor we have one more capacitor over here. Now what will happen? C5, suppose this is C6 and let's say it is C7. How many capacitors are there now? We have 7 capacitors. Now one more capacitor is there. Then how will we solve this numerical? देखिए इसको हम उसी में जहां जहां स्टेप्स हैं हम इसको बताते जाएंगे। अब A पॉइंट से B डैश तक आने से पहले हमें A पॉइंट से सपोज B डबल डैश पॉइंट पे जाना पड़ेगा, और यहां से जाने के रास्ते कितने होंगे? 2 रास्ते होंगे। एक रास्ते में C3 और C4 है, एक पाथ के अलोंग C6 है। इट मींस दीज टू ब्रांचेस आर in which combination? In parallel combination, and in this branch C3 and C4, that is in series combination. So we will start from C3 and C4
आर इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दो का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, C3C4 अपॉन C3 प्लस C4, 1 into 1 upon 1 plus 1, 1 upon 2 microfarad. अच्छा, हमने for the sake of convenience we have taken 1 microfarad. You can have any value, doesn't matter, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हम C भी ले सकते हैं, C से भी हम सॉल्व कर सकते थे। Basically our objective is to understand the method or the process to solve the numericals. Just we are going to make the slight change in the question and then we are making the solutions. Okay, this C34 is this one, and now in new diagram what will happen, this C1 is as such, this is C2, this one is C7, and this one is now I can say C6. And now what about this one, this one capacitor becomes, that is C3 and 4, C3 4. We have changed this diagram like this, this is A, this is B, this is C1. Now this branch, one more capacitor is there. Which one capacitor? Between B dash and B dash, this is C2 and this is C6. One more capacitor we have, that is here C5. This C5 capacitor is there. Okay, this diagram is changes into this diagram, or I can make a small change. चलिए और थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ अगर कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये भी ठीक था, अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो हम यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। चलिए ऐसे बना देते हैं, it will be C34 and it is C6. I think it is quite easy. इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने ये ले लिया है। अब आप C3 की जगह लगाएं या C4 की जगह लगाएं, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ लगा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये C34 माना जाएगा। इट मीन्स इस पॉइंट से लेकर के A dash, B dash and this is B double dash. So this capacitor C34 can be connected from this point to this point anywhere. In this branch we can connect anywhere. Now what will you do? These two capacitors are in parallel. So next step will be C34 and C6 are in parallel. And when you will apply the formula of parallel combination, C34 plus C6, and C34 comes about 1 by 2 plus 1 is equal to 3 by 2 microfarad. And in this diagram again, what will we do? This capacitor will become 3, 4, 6. अब ऐसा बन जाएगा. It will be the new diagram. And this is the diagram after this now. After this is the new diagram, C346, and now this and this, these two capacitors are in series, and again the result will become parallel. So one more steps I can solve now. C5, C346 are in series, और दो कैपेसिटर है तो C5, 3, 4, 6, or you can say 3, 4, 5, 6 also. Then it will become how much C5? This is 1. How much is this there? 3 by 2. दो वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. अगर केवल दो ही कैपेसिटर हैं तो फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए. 1 प्लस 3 by 2 is equal to 3 by 2 upon 5 by 2. It is 3 by 5 microfarad. It means these three capacitors have been again replaced. अब इसको भी अगर हम अगला डायग्राम बनाएं तो यहाँ कितना बनेगा? C5 और आ जाएगा यहाँ पर. ये इसके बाद का डायग्राम हो गया, इस स्टेप के बाद. और आगे हमें बताने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस डायग्राम से रिजल्ट मैच कर गया. अगेन दीज टू विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर. ये दोनों पैरेलल में आएंगे. दोनों का पैरेलल के बाद फिर जो बचेगा तीनों कैसे बनेंगे? सीरीज में बनेंगे. आई थिंक एवरीबॉडी कैन सॉल्व इट फर्दर. आगे का सॉल्यूशन कॉमन हो जाएगा. ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनसे मैच कर जाएगा. चलिए अब ये क्वेश्चन और बनाते हैं हम इसी में. Now we'll have one more question now. I'm going to modify the same diagram and suppose it is next, that is D. First, second, third, fourth भी कर सकते हैं, A, B, C, D भी कर सकते हैं. Suppose this time we have two more capacitors connected over here. Suppose this is C8 and this is C9. Okay. What will be the equivalent capacitance across these two terminals A and B? Same question है, because C8 and C9 are not in a closed circuit. It means C8 and C9 are in open circuit or are not in closed circuit. So both C8 and C9 can be neglected. इनका सर्किट में कोई रोल नहीं होगा,
क्यों रोल नहीं होगा? ये आपस में हमने क्या नहीं किया, इनको कनेक्ट नहीं किया। जब तक कैपेसिटर से हम क्लोज सर्किट नहीं बनाते तब तक वो इक्विवेलेंट सर्किट में उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, न उसमें चार्ज फ्लो करेगा, ना वो कॉम्बिनेशन में कोई रोल प्ले करेगा। ऐसे केस में बचे। बट डोंट थिंक सो कि यहाँ भी ओपन सर्किट है, ए भी ओपन सर्किट है, इधर ओपन सर्किट नहीं है। अगर हम ए बी के क्रॉस निकाल रहे हैं, इट मींस हियर वी हैव कनेक्टेड ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। कोई बैटरी है, हमने सोर्स लगाया हुआ है जिस वजह से इसमें चार्ज होते हैं। अगर हम इधर निकालना चाहें सपोज इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस, देन दीज टू C1 and C1 will become negligible because both will be in the open circuit. I think clear हो गया? So in next step what can we do? In next step these two capacitors can be removed and again it will become the previous question. ये पहले वाला क्वेश्चन बन गया है। तो देखिए अभी तक हमने सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हीं में हमने थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है और सब ये टाइप ए की प्रॉब्लम्स हैं इन विच इजीली वी आर इन ए पोजीशन टू आइडेंटिफाई विच वन इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड विच वन इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसी में थोड़ा सा और हम इसकी स्ट्रेटेजी बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं एंड ट्रिकी क्वेश्चन इज this is A and this is B, it is C1, C2 and C3. Find equivalent capacitance. Is it a tricky question? ये तो बड़ा आसान हो गया। All these three are in series combination और बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा। Now I am going to make one change in it. अगर हम इसको ऐसे कर दें, then find its equivalent capacitance across terminals A and B. अब कैसे करेंगे? अब हमें देखना पड़ेगा। Mean this A is connected with this point with a wire and this again is connected with point B with a wire. Let's imagine this point D and this point is E. Now try to identify, is it a series combination or is it a parallel combination? I think we are not in a position to identify series and parallel combination in this case, so we have to do something. So this type of numericals now, हम इसको क्या करेंगे? This time we are not in a position to identify the nature of the combination. So first of all, we have to just make slight change in the network. इस नेटवर्क में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और चेंज करने का रूल है बच्चों, we can change the position of a capacitor without changing its connections. हम कनेक्शन को बिना बदले हुए पोजीशन बदल सकते हैं। कोई अगर हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर सकते हैं, इंक्लाइन कर सकते हैं, बट इफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन एनी दीज टू पॉइंट्स देन इट विल रिमेन कनेक्टेड बिटवीन दोज पॉइंट्स। ओके, अब देखिए इसको ध्यान से समझना हम कैसे चेंज करेंगे। अब नॉर्मली तो हम मेथड में नहीं पता कर पा रहे हैं। देखिए हम ये जो C2 है हम इसको थोड़ा सा वर्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज D and this point is E and this capacitor is C2. Same diagram in other form. अब देखो D point is connected with A and what is in between? C1. चलिए D से चलते हैं और A पॉइंट पर आ जाइए। ये पॉइंट A आपने मान लिया, और कौन सा कैपेसिटर हो गया? C1 हो गया। अब यहां से लेके इस पूरी ब्रांच में कहीं भी आप C1 लगा दीजिए, ये कैपेसिटर बनेगा। फाइंड पॉइंट A इज कनेक्टेड विद E। ए पॉइंट ये है, इसको E से कनेक्ट कर दीजिए। देयर इज नो कैपेसिटर इन बिटवीन एंड सिमिलर स्टेप कैन बी मेड ऑन द अदर साइड। देखिए यहाँ पर पॉइंट कौन से वाला है हमारा? E पॉइंट है। ये कौन सा है? B है। जब E से हम चलेंगे और B तक हम जाएंगे, ये पॉइंट आप B मान लीजिए, ये कैपेसिटर C3 है एंड पॉइंट B इज कनेक्टेड टू D। These two points are connected through a wire. So this diagram changes to this diagram. It is the equivalent diagram of this network. और इस नेटवर्क में क्यों बनाया हमने, क्यों ऐसा करना पड़ा कि इस नेटवर्क में डायरेक्टली हम इस पोजीशन में नहीं थे, हम सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। क्या इसमें कर सकते हैं? देखो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने के कितने रास्ते हैं? वाया C1, वाया C2 and via C3. How many paths are available? 3 paths are available. It means C1, C2 and C3 are in which combination? C1, C2 and C3 are in parallel combination, and these are parallel combination. Then CAB is equal to
C1 plus C2 plus C3, 1 plus 1 plus 1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। सो आसान था क्वेश्चन, काफी आसान था, लेकिन यहां सॉल्व नहीं कर सकते थे। यहां अगर हमने इसको रिफ्रेम किया, नेटवर्क को रिकंस्ट्रक्ट किया, देन वी आर इन ए पोजीशन टू सॉल्व इट इजीली और टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बहुत आसानी से हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इस तरीके से फाइंड कर लिया। चलिए इसी का एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं। इफ आई कनेक्ट वन मोर कैपेसिटर ओवर हियर एंड दिस कैपेसिटर इज ओवर हियर, सपोज दिस वन इज C4 एंड दिस वन इज C5, अगेन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या करेंगे? सेम थिंग्स यू कैन रिपीट नाउ। देखो A पॉइंट इज कनेक्टेड विद E, A पॉइंट इज कनेक्टेड विद E, और दोनों के बीच में पहले एक वायर था, अब यहां क्या लगाएंगे? C4 लगाएंगे। So this capacitor is C4 and D और B के बीच में, D और B के बीच में कौन सा है? This capacitor is C5। ये C5 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? How to solve this capacitor? ये भी डिफिकल्ट हो गया सॉल्व करना। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट है, वो आगे जाके हम डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कॉन्सेप्ट होता है। और क्या कॉन्सेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का? अगर हम कहीं 4 रजिस्टर्स को हम किसी एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं, और उसके एक डायगोनल में हम गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल में अगर हम सेल लगा देते हैं, ये R1, R2, R3 एंड R4, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। नेटवर्क है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। आगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसमें पढ़ेंगे, और इसमें हम एक चीज प्रूव करते हैं, इसे कंडीशन ऑफ बैलेंस कहते हैं। इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, देन दिस ब्रांच डज नॉट कैरी एनी करंट। इसमें कोई करंट नहीं होता, ये दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होते हैं, और अगर इसमें करंट नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अब ये कॉन्सेप्ट हम कहां अप्लाई कर रहे हैं? कैपेसिटर में अप्लाई करेंगे, पढ़ेंगे बाद में, अप्लाई पहले कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर इस नेटवर्क को हम इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे। यहां से आप दोनों ब्रांच A और B को पुल कर दीजिए, और जब A और B को दोनों को आप पुल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नेटवर्क दिखाई देगा। ये बन जाएगा ये वाला नेटवर्क, ये बनेगा आपका C2, दिस इज C1, दिस इज C4, दिस वन इज C5 एंड दिस वन इज C3, C5 and this is C3, this terminal is A and this terminal is B। ये बन जाएगा। ये और ये दोनों सेम है। देखिए इससे हमने ये बनाया, इससे हमने ये वाला नेटवर्क बनाया, और इस नेटवर्क को हम कहेंगे, सिंस अगर रेशो इक्वल है तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। सिंस क्या है? C1 अपॉन C4 इज इक्वल टू C5 अपॉन C3 इज इक्वल टू 1/1, बिकॉज ईच कैपेसिटर जो 1 माइक्रोफैरड, या ये 5-10 हो जाए, ये आपका 2-4 हो जाए, ये रेशो दोनों की इक्वल आ जाए, देन C2 कैन बी नेग्लेक्टेड। कहां से आए कॉन्सेप्ट? जो अभी हमने सिखाया। कहां से? फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे डिटेल में पढ़ लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में। एंड इफ इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो हम यहां से इसको नेग्लेक्ट करेंगे, और अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, what will you do? Now C1 and C5 are in series, C4 and C3 in series, and both the branches are in parallel। तो बताइए कितना आसान हो गया ये। जो डिफिकल्ट हमें लग रहा था देखने में, यही क्वेश्चन काफी इजी हो गए। तो इसको हमने थोड़ा सा नेटवर्क को रिफ्रेम करने के बाद इसको हमने सॉल्व किया। चलिए इसमें एक और लेते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए हमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हाउ मेनी न्यूमेरिकल्स वी हैव डन, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कितनी नई नई टेक्निक के न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब एक टाइप का न्यूमेरिकल है, उसमें आप वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व करते चले जाइए, उसमें तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल समझने। अब देखो इसी में एक न्यूमेरिकल्स और ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। ये कैपेसिटर है का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से है, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। अभी तक हमने सारे फाइनाइट ब्रांचेज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम इनफाइनाइट ब्रांच वाला कर रहे हैं, और इसकी कंडीशन भी वही है जो पहले हमने पढ़ी थी। ईच कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफैरड एंड दिस नेटवर्क एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। ये इन्फिनिटी तक आगे जाएगा, एक्सटेंड करेगा इन्फिनिटी तक। अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इनको हम? सबकी वैल्यू C इक्वल है, ये सब C वाले हैं, और ये नेटवर्क इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन दिस केस वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट मेथड।
जो हम लास्ट से अगर ये नहीं होता, सपोज ये इनफाइनाइट नहीं होता, तो कैसे सॉल्व करते? दिस एंड दिस बोथ आर इन सीरीज, then parallel, then series, parallel, and then we can solve it. We have done this type of numericals, but since it extends up to infinity, we can't solve. तो यहाँ देखिए टेक्निक लगाएंगे छोटी सी, क्या टेक्निक लगाएंगे? Let capacitance across, किसके क्रॉस? A and B. सपोज ये कितना मान लेंगे आप? C मान लीजिए या X मान लीजिए, और जितने 1 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर्स हैं ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये भी 1 माइक्रोफेरेड है, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 ईच कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। हमने मान लिया कि इनके ए और बी के क्रॉस कितने कैपेसिटेंस है? सी है। अब देखो इसमें कहीं सिमेट्री दिखाई देगी आपको। सिमेट्री क्या है? पहले वाला नेटवर्क देखो 2 कैपेसिटर, दूसरे वाला नेटवर्क देखो 2 कैपेसिटर, फिर ये देखो आइडेंटिकली रिपीट हो रहा है कि नहीं। अगर मैं इस पॉइंट को हम ए डैश कर दें, इस पॉइंट को बी डैश कर दें, इस पॉइंट को ए डबल डैश कर दें, इस पॉइंट को क्या करना है? बी डबल डैश, तो बताइए नेटवर्क आइडेंटिकली रिपीट होते जा रहे हैं कि नहीं। और अगर ए और बी के क्रॉस हम कैपेसिटेंस सी ले सकते हैं, एंड सिंस दिस इनफाइनाइट दिस नेटवर्क एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, अगर हम उसमें से एक पार्ट कम कर दें, माइनस कर दें, इन्फिनिटी -1 कर दें, तो क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। किसी तालाब में से अगर एक डब्बा पानी निकाल कर ले आओगे तो तालाब के लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा, पानी के लेवल पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इनफाइनाइट इज ए बिग नंबर, उसमें से अगर एक नेटवर्क को हम एक पार्ट को कम कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? वी कैन एज्यूम, इसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाएंगे, वी कैन एज्यूम कैपेसिटेंस किसके क्रॉस? A डैश एंड B डैश इज इक्वल टू C। अगर ए बी के क्रॉस C है तो A डैश B डैश के क्रॉस भी कितनी आएगी? C आएगी। क्यों? एक नेटवर्क को क्या कर दिया हमने? कम कर दिया। तो अगर यहाँ पर C है, पूरा नेटवर्क आगे का हटाइए, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला पार्ट था, यहाँ से आपने ये 1 माइक्रोफेरेड है, दिस इज 1 माइक्रोफेरेड, दिस इज 1 माइक्रोफेरेड, एंड नाउ इट विल बिकम C, दिस इज A डैश B डैश, एंड दिस वन इज A एंड B। अब बताइए नेटवर्क फाइनाइट हो गया कि नहीं? अब ये फाइनाइट में कन्वर्ट हो गया। अगर फाइनाइट में कन्वर्ट हो गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट अबाउट दीज टू? दीज टू आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो देखिए पैरेलल में हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो हम डायरेक्ट करना सीख सकते हैं। अगर 2 पैरेलल है तो क्या फॉर्मूला है? पैरेलल का फॉर्मूला कौन सा हमारे पास? पैरेलल का फॉर्मूला है C1 प्लस C2, देन इट विल बिकम C प्लस 1, देन इट इज C प्लस 1, and this one is 1 and this one is 1 and this is point A and B. And what about these 3? Now these 3 are in series and equivalent capacitance is again C. तो तीनों का हम सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे और किसके इक्वल रखेंगे? C के। तो देखिए कितना आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आपका है 1/1, यहां से आएगा, प्लस 1/C प्लस 1, प्लस कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/C प्लस 1। और ये किसके इक्वल रख दिया हमने? C के इक्वल रख दिया। ये देखो टोटल भी कितना है? C है, और यहां से हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और 1/C इज इक्वल टू 2C प्लस 2 प्लस 1/C प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2C प्लस 3 डिवाइडेड बाई C प्लस 1। आई थिंक सो। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, यहाँ से 2C हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2C स्क्वायर प्लस 3C इज इक्वल टू C प्लस 1, और 2C स्क्वायर प्लस 2C माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको में फैक्टर से तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए। -B प्लस माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4A इंटू C, and now you can solve it upon 2A, 2 into 2, and now you can find -2 plus minus, it is 4, 4 2 is 8 divided by 4, -2 plus minus, it is 12, 12 को हम लिख सकते हैं 4 into 3, 4 into 3 means 2√3 divided by 4, it will become -1 plus minus √3/4। और अगर हम 2 साइन लेंगे, एक नेगेटिव साइन लेंगे, दोनों अगर नेगेटिव लेंगे तो रिजल्ट किसमें आएगा? नेगेटिव। कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इट मींस हम कौन सा साइन कंसीडर करना पड़ेगा? पॉजिटिव। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस √3/4, इट विल बी आंसर, and the √3 can be 1.732. So this is a way to solve this numerical
विच न्यूमेरिकल विच एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। तो देखिए हमने बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे, पहले जिनमें डायरेक्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम एक एक स्टेप बढ़ाते गए एक एक स्टेप, और लास्ट में हम कहां तक पहुंच गए, इन्फिनिटी, जो इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स कैन बी सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट बाय आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल, in which we are not in a position to solve, then we'll try to reframe the network and again to adjust the capacitors in a proper way so that we can understand the capacitance, the combination, and we accordingly we can apply the formula. But in this case, जब इनफाइनाइट नेटवर्क हो जाता है तब हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स देखने पड़ते हैं, देन हम इनडायरेक्ट मेथड से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड किए, आई थिंक सब बच्चों को समझ आ गए होंगे। एक टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं ये सब, इसमें डिफरेंट कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस हैं। सो मेनी न्यूमेरिकल्स वी आर डूइंग, इतने क्वेश्चंस करने के बाद वी विल बी इन ए पोजीशन टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये एक फेज बना न्यूमेरिकल्स का बच्चों।